Hello everyone. Today we will discuss about the application of derivative, in which the first important application in geometry, that is tangent and normal. Okay. तो tangent and normal में यानी ज्योमेट्री में डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, आइए. व्हाट इज slope of tangent at any point px1 y1 lies on the curve. What is slope of tangent? देखो प्लीज, क्या होता है slope of tangent? देखो, let us consider any curve like this. ऐसा कोई भी एक कर्व है और इस कर्व को मैंने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया है. ठीक है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है. ये जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सपोज टू बी x1 y1. ओके, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व dy by dx at that point. So what is slope of tangent at p x1 y1? dy by dx at point p. It means dy by dx nothing but slope. dy by dx nothing but slope. It means that we can use slope to find tangent and normal at given point. Let us see please. Equation of tangent at px1 y1. It is y minus y1 equal to slope dy by dx at that point p into x minus x1. It is point slope form. This is slope. Now we are using the value of m as dy by dx at p to get the equation of any line, you know, and here this line is tangent, and for the tangent slope is dy by dx, so that y minus y1 equal to dy by dx into x minus x1 is the equation of tangent. Now equation of normal. To write the equation of normal, we must know that normal always perpendicular to tangent, so that its equation takes the form y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx at point p into x minus x1. देखो बेटा, ये नॉर्मल का इक्वेशन, ये टेंजेंट का इक्वेशन, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक नाम है, ग्रेडियंट बोलते हैं उसको. ग्रेडियंट ऑफ कर्व y equal to f of x. Gradient of any curve y equal to f of x is slope of tangent at px y1. Okay, that is dy by dx at p. Got it? Yes. Now we are solving one example on equation of tangent and equation of normal. Okay, please see the question. Find the equation of tangent and normal to this curve at point root 3 comma 2. Let us see how to do. First write down the given equation of curve. It is x square minus root 3hy plus 2y square equal to 5. Equation number 1. Point on it px1 y1 is equal to root 3 comma 2. ओके, देखो पॉइंट लिया है हमने. ओके, अब इससे क्या करना है, हमें स्लोप चाहिए, यानी dy by dx एट गिवन पॉइंट चाहिए. तो हम इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट. हाँ, चलो. डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x. अब देखो डेरिवेटिव निकालना है हमें इसका, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है. ये सब मैंने इम्प्लिसिट का चुना है. कभी ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो सकता है, कभी पैरामीट्रिक में हो सकता है. पैरामीट्रिक में आया तो x और y सेपरेट होंगे, तब हम उनका डेरिवेटिव निकालेंगे, t के अंदर आंसर या थीटा के आंसर आ जाएगा. इट मींस दैट हर बार ये सिर्फ इम्प्लिसिट में भी होगा ऐसा नहीं है, वो पैरामीट्रिक में हो सकता है, वो एक्सप्लिसिट में भी हो सकता है. चलो आप डेरिवेटिव निकालते हैं. डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है बेटा, 2x माइनस रूट 3. xy प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा. x into dy by dx plus y into 1 plus 2 to the 4y dy by dx is equal to 0. ठीक है,
2x minus root 3 times x dy by dx minus root 3y plus 4y dy by dx equal to 0. Now, how many terms of dy by dx? This one and this one. Take them to one side. 4y minus root 3x dy by dx and shift the remaining term to the next side. It is root 3y minus 2x, and we get the dy by dx as root 3y minus 2x divided by 4y minus root 3 times x. Okay, now ये तो dy by dx मिल गया, हमें dy by dx एट पॉइंट p चाहिए, तो p क्या है? रूट 3 कॉमा 2 है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे. देखो कैसे पुट करते हैं. dy by dx is equal to dy by dx at any point p is equal to root 3 as it is. Okay beta, root 3 as it is. What is y? 2. Okay, minus 2 as it is. X is root 3. Got it? Then next 4y y is 2. Then minus root 3 into root 3. This 2 root 3, this is 2 root 3 is 0, and denominator 4 to the 8 minus 3 is 5, so it is 0. So derivative कितना आया? 0 आया. It means that we have derivative dy by dx, it is 0. डेरिवेटिव 0 आया मतलब हमारा टेंजेंट x एक्सिस को पैरेलल होता है. ठीक है, डेरिवेटिव 0 आया मतलब हमारा टेंजेंट x एक्सिस को पैरेलल होता है. तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला क्या है? y minus y1 is equal to dy by dx at p into x minus x1. चलो हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. y minus y1 यानी क्या हो रहा है बेटा? y minus what is y1? 2 इक्वल टू 0 आया. x माइनस समथिंग जो भी रूट 3 होगा 0 into समथिंग 0 आ जाएगा. अगर यहाँ पे 0 आया इसलिए ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है. सपोज दैट इधर 2 आता तो हम मल्टीप्लाई करके पूरा इक्वेशन बनाते, लेकिन अभी अच्छा हुआ 0 आया है तो ये सम इजी मिला हमें. y minus 2 इक्वल टू 0. बस ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया है. अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के समय हम क्या करने वाले हैं? देखो प्लीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो कैसे निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला लिखते पहले y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx at p, dy by dx at p into x minus x1. चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हमें पता है dy by dx at p के 0 आने वाला है. डिनोमिनेटर में 0 अच्छा नहीं लगता, तो फॉर्मूला में हम चेंज करेंगे. कैसे करेंगे? dy by dx at p को इस साइड में लेंगे. dy by dx at p into y minus y1 is equal to minus of x minus x1 आ रहा है. चलो अभी कुछ टेंशन नहीं रहा हमें, तो ये dy by dx at p इधर आया, इसको 0 करेंगे. y minus y1 यानी 2 आया इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस रूट 3 आ गया बेटा. 0 into समथिंग ये टोटली इस साइड में 0 हो गया है, टोटली ये 0 हो गया. इट इज इक्वल टू माइनस x प्लस रूट 3 आया. तो चलो हम दोनों को भी सीधा कर सकते हैं. x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू रूट 3. ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. एक्चुअली विदाउट राइटिंग दिस आप इस सम में डायरेक्टली कर सकते थे. वी नो दैट नॉर्मल इज here slope of normal is not defined, it is parallel to y-axis and its equation is x equal to root 3. डायरेक्टली लिखा जा सकता है, लेकिन ये मैं ऐसे क्यों लिखा हूं कि हर क्वेश्चन में आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है. ठीक है, दिस इज अ वर्ड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. मुझे लग रहा है आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा और आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने का जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा. एंड दिस मस्ट बी यूजफुल टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.